Schizophrenia, the first lecture of psychiatry. The objectives of today's lecture: at the end of the session, you will be able to know what is schizophrenia, what are the possible reasons for schizophrenia, what are the features for schizophrenia, different types of schizophrenia, how to diagnose a patient with schizophrenia, the treatment outline. The definition: schizophrenia is a psychiatric illness. It is characterized by the psychosis, disintegration of the ability to think logically and maintain a normal social behavior. तो schizophrenia एक psychiatric illness है जिसके पैरामीटर्स में देखा था psychosis and disintegration of the ability to think logically. एबिलिटी नहीं होती कि वो सही तरीके से सोचे और एक नॉर्मल सोशल बिहेवियर को मेंटेन कर सके। यहाँ ये जो टर्म है खासकर साइकोसिस से क्या मुराद है, बड़ा कॉमनली हम लोग यूज करते हैं और अपनी बातों के दौरान भी लोगों को कह देते हैं कभी भाई तुम तो साइको हो। तो कभी हमने ये सोचा है कि ये साइको वर्ड जो है, जो हम किसी को भी लेबल करते हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है। इवन ये एक इलीगल टर्म है और लीगली क्लेम होने जैसा है। आप में से किसी ने ये सोचा है इस चीज को? अगर सोचा है तो क्या है ये साइकोसिस? आपसे शेयरिंग चाहेंगे इस चीजों की। व्हाट इज साइकोसिस बेसिकली? एनीवन? व्हाट इज साइकोसिस? किसे कहते हैं हम साइको, और कब कहते हैं आप ये वर्ड साइको? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हरी अप। नहीं पता किसी को? तो हमारे पास इस वक्त करीबन 56 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ये मीनिंग नहीं पता कि व्हाट इज साइकोसिस। जी, inability of the patient to tell what is real or not. Okay, anyone else? चलें इसको कंप्लीट करते हैं। साइकोसिस, बेसिकली साइकोसिस itself is a syndrome. It is a syndrome which is characterized by the lack of the ability to assess the reality and behave coherently. साइकोसिस तब होता है जब एक मरीज या जो आपका पर्सन है उसने रियलिटी को असेस करना बंद कर दे, उसको रियलिटी समझ में ना आए और रियलिटी के हिसाब से वो एक्ट ना करे। It is the lack of the ability to assess the reality and behave coherently. मतलब जो सिचुएशन है अमूमन, जैसे अगर ये सिचुएशन है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आप स्टूडेंट्स हैं तो आप सुन रहे हैं वहाँ पे, मैं यहाँ पे लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। इस सिचुएशन में हम लोग रियलिटी को समझ रहे हैं कि रियलिटी क्या है, लेक्चर चल रहा है और हम बिहेव भी ऐसे कर रहे हैं। एक लेक्चरर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है, स्टूडेंट्स उसे सुन रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो उसको साइकोसिस में ले जाया जा सकता है। तो साइकोसिस इज इटसेल्फ अ सिंड्रोम। अब जिस साइकोसिस हम कब डायग्नोज करते हैं? साइकोसिस इज डायग्नोज्ड if one or more of the following features are present. The first feature is hallucination, another is delusions, then disorganized speech, disorganized behavior, and disorganized motor or catatonic behavior. These are the 5 features for psychosis. If any one of it, any one is present, we can label a person as psycho. So what is hallucination? We will describe it in the coming 2 or 3 slides.
Yes, Uzma Bibi, mental disorder. Okay, it's not a mental disorder, it's a syndrome. So I hope the definition of schizophrenia is clear. So what are the reasons for schizophrenia? Or what is the basic etiology behind the schizophrenia? So it is idiopathic. There are multiple factors, are the multiple risk factors which decide the mental capacity or which decides the person's ability for to become a schizophrenic. So no single cause has been identified. It is likely to be a disease of a neurodevelopmental disconnection, which is caused by the interaction of these three risk factors: biological factors, psychological factors, and the social factors. They all will affect the development of the brain. So if we start with the biological factors, then in biological factor there is number one, which is genetic. Number two, there is the role of the neurotransmitter like dopamine. Number three, the role of serotonin. Number four, for the glutamine. So the first one, which is the genetic, in biological factors, in genetic it is polygenic and it is non-Mendelian inheritance. Usually the inheritance are Mendelian, but it is non-Mendelian inheritance. So schizophrenia that has a heritability of around 80%. And if we calculate the genetic risk, then the genetic risk in the general population, in the whole population of the world, is around 0.5 to 1%. यानी कि जितनी भी आवाम है हमारी, इसमें 1% तक चांस है कि वो सब शिजोफ्रेनिक हो सकते हैं. अगर और डीपली बात करें कि जो सेकंड डिग्री रिलेटिव्स हैं, सेकंड डिग्री रिलेटिव से मुराद है कि कजन्स हो जाते हैं आपके, चाचा के बेटे, मामा के बेटे या बेटियां. तो सेकंड डिग्री जो रिलेटिव्स हैं या फिर पोते पोतियां, तो उसमें जो रिस्क क्या हो जाता है, अराउंड 2.5%. अगर किसी में है, बच्चों में है, तो उसके पेरेंट्स में प्रोबेबली रिस्क 4% है और उसके सिबलिंग्स में अराउंड 8%. अगर एक पेशेंट ऐसा है, यानी कि एक पेरेंट ऐसा है जो इफेक्टेड है शिजोफ्रेनिया से, तो उसके बच्चों में ट्रांसमिट होने का रिस्क हो जाता है 12%. अगर दोनों पेरेंट्स इफेक्टेड हैं, दोनों शिजोफ्रेनिक हैं, तो फिर उनके जो बच्चों में रिस्क है ट्रांसमिशन का, वो है 30 to 40%. और इसी तरीके से डाइजाइगोटिक ट्विंस और मोनोजाइगोटिक ट्विंस, अगर डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं तो 8 to 10% है, और मोनोजाइगोटिक ट्विंस में अराउंड 40 to 60% रिस्क है कि अगर एक ट्विन शिजोफ्रेनिक है तो दूसरे का रिस्क अराउंड 40 to 60% है कि वो भी शिजोफ्रेनिक होगा. तो ये सारी जेनेटिक्स की बातें हो गई. मूव करते हैं दूसरा रिस्क फैक्टर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन में, जैसे डोपामीन. There's an increase in the dopamine due to the upregulation of the dopaminergic receptors in the mesolimbic system. Third है increase in the serotonin. Serotonin or 5-hydroxytryptamine, especially in the prefrontal cortex. And fourth is glutamine. The decrease in the glutamine. File title. एक क्वेश्चन है होपफुली. ये गुलशन कुमार ने कहा है कि hallucination, seeing or hearing the things that other doesn't see or hear. Very good, Gulshan Kumar, but we will discuss the hallucination in coming slide. Now we are just want to finalize these risk factors. So biological factors are genetics and neurotransmitters, dopamine. Third is serotonin.
and then it is the glutamine. Clear? Moving to the psychological factors. In psychological factors, there are two theories. One is the Freud theory, another is the learning theory. The Freud theory, वर्ड से क्या मुराद है? फ्राइड, यानी कि अगर आप उसको डराते हैं बच्चों को, खास तौर पर उनके ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे। ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कब है? जब बच्चा पहले खाना पीना शुरू करता है। ये साइकेट्रिक स्टेज है डेवलपमेंट की। तो ओरल स्टेज के टाइम पे जब उनको आप ज्यादा मना करते हो कि भाई आपने ये नहीं खाना, आपने वहां नहीं बैठना, आप यहाँ से गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी, या उनको डराया जाता है, क्योंकि बच्चा जो होता है उसको पता नहीं होता क्या खाना है। तो जब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, उसकी डेवलपमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसके दिमाग में जो नए आइडियाज आ रहे हैं आप उसको रोक रहे हैं, बेशक आप उसकी भलाई के लिए रोक रहे हैं। जब उस बच्चे को बार बार टोका जाएगा, हर काम से रोका जाएगा, तो वो इफेक्ट करता है उसकी न्यूरो डेवलपमेंट में और शिज़ोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड है उसकी लर्निंग थ्योरी। अब लर्निंग थ्योरी में क्या होता है? इट्स बेसिकली डेविएशन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। अक्सर घर में माहौल ये होता है कि एक पेरेंट ज्यादा डोमिनेंट है और एक ज्यादा सप्रेस्ड है। इनको देखकर भी बच्चे के दिमाग पे असर पड़ता है और वो शिज़ोफ्रेनिक होने के चांसेस होते हैं। या फिर ओवर केयर बाय द पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत ज्यादा केयर दे रहे हैं, अननेसेसरी केयर। कि अगर तुम बाहर जा रहे हो, अगर आधे घंटे तक वापस नहीं आ रहा, फिर कॉल करके पूछ ली, या उसको देखने चले गए। अगर किसी दोस्त के घर जा रहे हैं तो उसकी इंक्वायरी करते हैं, आप किस दोस्त के घर जा रहे हैं, कितनी देर के लिए जाएंगे, नहीं आपको वापस आने की जरूरत नहीं, हम खुद पिकअप कर लेंगे। स्कूलिंग के दौरान पिक एंड ड्रॉप देते हैं, उसकी टाइमिंग का ख्याल रखते हैं, हर वक्त उसके ऊपर नजर रखते हैं, कहीं उसे कोई तकलीफ ना हो। बेसिकली पेरेंट्स तो ये चाहते हैं उसको प्रोटेक्ट करें, लेकिन जितनी ज्यादा ओवर केयर देंगे तो वो भी शिज़ोफ्रेनिक रिस्क होता है, क्योंकि आपने उसको खुद को लर्न करने नहीं दिया, उसकी मेंटल कैपेसिटी को डेवलप होने ही नहीं दिया। तीसरी बात होती है कि अगर डबल माइंडेड चाइल्ड कब होता है? जब पेरेंट्स दो उनकी आपस में ना बन रही हो, दोनों पेरेंट्स अलग अलग ऑर्डर दे रहे हैं, अलग अलग चीजें उसको सिखा रहे हैं। अब जब बच्चा अपने डेवलपमेंटल स्टेज पे होता है तो उसे ये चीजें समझ में नहीं आती और वो डबल माइंड हो जाता है, वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाता है, क्योंकि अक्सर उसके डिसीजन जो है या तो उसका जो डोमिनेंट पेरेंट है वो ले रहा है, या उसके पेरेंट्स उसको ओवर प्रोटेक्ट करके उसके डिसीजन वो ले रहे हैं, या फिर कभी ये हो रहा है कि दोनों पेरेंट्स के अलग अलग डिसीजन, अब वो किसी को नाराज नहीं करना चाहता और डबल माइंड हो जाता है। फिर ये डबल माइंड थ्योरी जो है थ्रू आउट द लाइफ उसकी चलती रहती है। हर एक छोटे से छोटे डिसीजन में भी वो चीजों को सोचता रहता है कि मैं अब डिसीजन लूंगा तो कौन से लूंगा। क्लियर कट डिसीजन लेने की कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाती है। तो ये लर्निंग थ्योरी और फ्राइड थ्योरी ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। अब आ जाते हैं आपके सोशल फैक्टर्स पे। सोशल फैक्टर्स में खास तौर पे कहा गया विंटर सीजन में शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट बहुत ज्यादा रिपोर्ट करते हैं। इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है, क्योंकि ये टियोलॉजी नहीं है, ये रिस्क फैक्टर है। ये एक स्टडीज की गई, लार्ज पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज, उनमें देखा गया भाई विंटर सीजन जब भी होती है तो शिज़ोफ्रेनिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। Multiple viral infection also increases the risk of schizophrenia. नंबर थर्ड अगर आप देखेंगे हाईली एक्सप्रेसिव, हाईली इमोशनल फैमिली, एक ऐसी फैमिली जिसमें इमोशंस की बहुत ज्यादा कदर है। छोटी छोटी बातों पे जब वो रोने लगते हैं और छोटी छोटी खुशियों को वो सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें लगता है कि हम ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं, हम एक दूसरे की केयर करते हैं। लेकिन इतनी एक्सप्रेसिव, इतनी इमोशनल फैमिली जो छोटे छोटे दुख से रोना शुरू कर दे, छोटी छोटी खुशियों को बड़ा कर ले, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है शिज़ोफ्रेनिया का।
यानी कि जहाँ पर उस चाइल्ड की जो ग्रोथ हुई है, अगर ऐसी एक्सप्रेसिव फैमिली में है तो वो उसके लिए शिज़ोफ्रेनिया का रिस्क बन जाती है। माइग्रेशन जो होती है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि एक फिल्म आई थी रिसेंटली जो विद्या बालन की थी विद अक्षय कुमार, तो उसकी जो अपनी दादी के साथ वो बच्ची रहती है और दादी के साथ बहुत ज्यादा अटैच होती है, लेकिन उसके दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो फॉरेन में कहीं रहते हैं। अब वो चाहते हैं कि अपनी बेटी को वहां से वो लेकर चले जाए, लेकिन वो अपने दादी के साथ, दादी की बातों में, उसकी परियों की कहानियों में वहां खुश होती है। जब उसे जबरदस्ती वहां से माइग्रेट करके ले जाते हैं तो वो शिज़ोफ्रेनिक होना शुरू हो जाती है। और वो शिज़ोफ्रेनिक कैसे होती है आप सबने उस फिल्म में ऑब्जर्व किया होगा। तो ये चीजें भी इफेक्ट करती हैं आपकी मेंटल कैपेसिटी को जब माइग्रेशन होती है। तो ये सारे सोशल फैक्टर, द वायरल इन्फेक्शन, विंटर सीजन, हाईली एक्सप्रेसिव एंड इमोशनल फैमिली और माइग्रेशन, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हो गए, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स फॉर schizophrenia. Now coming to the clinical features of schizophrenia. The schizophrenia has some positive symptom, negative symptom, cognitive symptom and others. मेन जो है वो ये है इसके पॉजिटिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम में वो सारे सिम्टम्स आते हैं, वो सारे फीचर आते हैं जो हमने साइकोसिस को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल किए थे। क्योंकि अगर इन 5 में से एक भी फीचर प्रेजेंट है तो उसको हम कह रहे थे साइकोसिस। लेकिन अब जब शिज़ोफ्रेनिया की बात करेंगे तो उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया चेंज होगा। पॉजिटिव सिम्टम में सबसे पहले है हेल्यूसिनेशन। अगर हेल्यूसिनेशन में देखें, नंबर 2 delusions, third disorganized speech, fourth it is grossly disorganized behavior, and the fifth one that is the disorganized motor, or it is also known as the catatonic behavior. हेल्यूसिनेशन को अगर मैं डिफाइन करूं सबसे पहले, तो ये जो हेल्यूसिनेशन हैं इसकी डेफिनेशन अभी गुलशन कुमार साहब ने हमारे साथ शेयर की थी। इसको अगर बेहतर तरीके से और साइकियाट्रिक टर्म में हम ले जाएं तो इट इज एन एपरेंट परसेप्शन ऑफ एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट व्हेन नो सच ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। अगर इसको मैं आसान जबान में समझाऊं तो ये है कि उस पेशेंट को ऐसा लग रहा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने है पर हकीकत में वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। इट इज एन एपरेंट परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन नो सच ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। सामने उसको दरख्त नजर आ रहा है लेकिन हकीकत में वहां दरख्त नहीं होता। हेल्यूसिनेशन भी डिफरेंट टाइप्स की हैं, जैसे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, विजुअल हेल्यूसिनेशन, सोमैटिक हेल्यूसिनेशन, tactile hallucinations, olfactory hallucination, gustatory hallucination, hypnagogic hallucinations, hypnopompic, Lilliputian hallucinations। लेकिन इन सब में जो कॉमन है वो है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन से क्या मुराद है? किसी मरीज के कानों में आवाज आना, जबकि हकीकत में वो आवाज, वो इको वहां नहीं है, लेकिन उस मरीज को सुनाई दे रहा है। विजुअल हेल्यूसिनेशन, कुछ चीजें नजर आना जबकि हकीकत में वो चीजें नहीं होती। तो हेल्यूसिनेशन इन्वॉल्विंग द सेंस ऑफ साइट। olfactory hallucinations, hallucinations involving the sense of smell. Gustatory hallucination, hallucinations involving the sense of taste. इसी तरीके से somatic hallucinations means hallucination which involving the sense of physical experience occurring with the body. Or tactile hallucinations mean hallucination which are involving the sense of touch.
It is a hypnagogic hallucination. Basically, these are the vivid dreams which are seen by the patient at the onset of the sleep. And hypnopompic hallucination, these are again the vivid dreams which are seen by the patient at the time of awakening. Lilliputian hallucination, it is a type of hallucination in which things, people and animals, they look smaller than in the reality. यानी कि उस मरीज को बाकी सब छोटे नजर आ रहे होते हैं अपने से, उसको हर एक चीज, हर एक ऑब्जेक्ट, जानवर, इंसान बिल्कुल छोटे छोटे नजर आ रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तो झामुंडा को अगर हम याद करें, पुरानी जब बचपन में एक फिल्म देखी थी, तो बहुत बड़ा होता था और बाकी सारी जो पॉपुलेशन थी साइलेंट थी, वो बहुत छोटी थी। हो सकता है उसको जो है वो लिलीपुटियन हेलुसिनेशन हो। चलिए, काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन दिए होंगे कि हेलुसिनेशन इन्वॉल्विंग द सेंस ऑफ बॉडी मूवमेंट। मरीज को लगेगा उसकी जो जिस्म है, उसकी बॉडी है, वो चल रही है, कोई ना कोई हरकत कर रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल मैंने शेयर किया था जब हमने पीपीएल दिया था, कि मैंने सेक्रेटरी वार्ड के रोटेशन में एक बंदा देखा, वो कह रहा था कि मुझे कुरान की आयतें फर्श पे नजर आती हैं। तो उससे क्या मुराद है, उसको विजुअल हेल्यूसिनेशन थी, उसको इकोज आते थे। कहता था अल्लाह मुझे आवाज दे रहा है कि उठो और अपने सारे घर वालों को कत्ल कर दो, सारे घर वालों की कुर्बानी दे दो। तो वो उसको ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन हो रही थी, वो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट था। तो उसने ऐसा ही किया, उसने अपने घर वालों के ऊपर कातिलाना हमला कर दिया था, क्योंकि उसको उसका अफसोस नहीं था। वो समझ रहा था कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने मुझसे कुर्बानी मांगी अपने घर वालों की और मैं दे रहा हूँ। तो ये ऑडिटरी और विजुअल हेल्यूसिनेशन का एक छोटा एग्जाम्पल है जो उस पेशेंट में हमने देखा। डिल्यूजन्स, ये भी हमने डिस्कस किया था जो ग्रुप मेरे साथ पीपीएल में था। Delusions are basically the false beliefs or false unshakable beliefs despite the objective evidence and the logical arguments. यानी मरीज का यकीन इतना पुख्ता होगा, भले आप उसे सबूत दे दें, आप उसे अपने लॉजिकल या जैसे कहेंगे दलीलें, जो कि हकीकत पे मुबनी दलीलें पेश कर दें, लेकिन उसके जो यकीन को आप हिला नहीं सकते। जैसे अगर वो यकीन करता है कि जो मेरे दोस्त बाहर बैठे हैं कि मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, और ये जब भी बात करते हैं मेरे खिलाफ करते हैं, भले आप उन दोस्तों की ऑडियो रिकॉर्डिंग ला के इसको सुना दें, आप उसे कितना भी समझा दें, लेकिन उसका बिलीफ, उसका यकीन इतना पुख्ता होगा कि आप उसे हिला नहीं पाएंगे। थर्ड फीचर्स में हमने पढ़ा था क्या था, कि डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच से क्या मुराद है, अब देखें। इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। एक स्पीच में 3 पैरामीटर होना जरूरी है, तब हम उसे डिसऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। अनइंटेलिजिबल, इनकोहेरेंस और रैम्बलिंग। अनइंटेलिजिबल का मतलब है कि गैर दानिशमंदाना, अनइंटेलिजिबल। इनकोहेरेंट मतलब ऐसी आवाज जिससे आपस में कोई लिंक ना हो। रैम्बलिंग, रैम्बलिंग हम उसे कहते हैं जब इंटरमिटेंट मटरिंग एंड शाउटिंग, कभी वो बहुत ज्यादा शाउट कर रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, कभी मुंह के अंदर जो है ना वो बातें बना रहा होगा। मटरिंग एंड शाउटिंग की जब कॉम्बिनेशन होगी उसको कहते हैं रम्बलिंग। तो डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच is characterized by the unintelligible, incoherent and rambling features. Grossly disorganized behavior हम किसे कहेंगे? Disorganized behavior में इसको हम अगर सिंपल समझने की कोशिश करें, ये बड़ा anxious behavior, aimless behavior है। aimless, bizarre, या फिर इसको कहें एजिटेटेड और ग्रॉसली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। एमलेस से क्या मुराद है, एक ऐसा उसका जो अपीयरेंस ऐसी है जिसका कोई मकसद नहीं है। बिजारी है, वो खुद से तंग है,
और एजिटेटेड है, चिड़चिड़ापन होगा, और इसको देखा जाए तो ग्रॉसली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है। मिसाल के तौर पर वैंडरिंग इन द स्ट्रीट, बाहर आप देखते हैं गलियों में कुछ लोग घूम रहे होते हैं, जिसे आप पागल कह देते हैं, वो यूं ही घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं भाई? कोई मकसद नहीं है उनका, वो किसी शॉप पे किसी काम से नहीं जा रहे, स्कूल या कॉलेजेस की तरफ नहीं जा रहे, वो यूं ही गलियों में घूमते रहते हैं। तो वैंडरिंग इन द स्ट्रीट, या उसके कपड़े देखेंगे ड्रेस्ड इनएप्रोप्रिएट। क्योंकि फिल्म आई थी एक सलमान खान की, आपने सलमान खान को देखा होगा, शिजोफ्रेनिया का रोल प्ले कर रहा है। उन्होंने क्या किया हुआ था कि अगर पजामा पहना हुआ था तो एक साइड का जो था उसका वो ऊपर किया हुआ था उसने थाई तक, बाकी एक पूरा पहना हुआ था। तो उसको क्या कहेंगे? ये ड्रेस्ड इनएप्रोप्रिएटली, और उसके उस बिहेवियर को हम कहेंगे ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। अब कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड मोटर और कैटाटोनिक बिहेवियर क्या है? बिहेवियर तो दोनों एक जैसे होते हैं। मोटर बिहेवियर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इसमें मार्क्ड मोटर एनोमलीज है। मोटर एनोमलीज से क्या मुराद है कि इमोबिलिटी, अगर उसको आप देखेंगे वो एक ही जगह पे इतना रिजिड रहेगा, बिल्कुल सख्त होकर एक जगह पर रहेगा। इनएप्रोप्रिएट पोस्चर, अगर लेट सपोज उसने अपने पाँव के ऊपर पाँव रख दिया तो वो घंटों तक वहीं पड़ा रहेगा, आप उसे हिला नहीं सकते। हालांकि एक आम आदमी इतना नहीं कर सकता कि एक ही पोस्चर काफी घंटों तक वो अडॉप्ट करके बैठा रहे, लेकिन ये जो होते हैं शिज़ोफ्रेनिक, इनका एक ही पोस्चर काफी घंटों तक वो पड़ा रहेगा, भले वो एबनॉर्मल पोस्चर। ये स्ट्यूप्रस हो जाते हैं, और कभी कभी स्टीरियोटाइप मूवमेंट, हमने नोटिस किया होगा हरू की मूवमेंट स्किल्ड मूवमेंट है, फिंगर्स की या फिर टोज की या हेड नॉडिंग, जिसका कोई मकसद नहीं है, वो मूवमेंट्स इनकी बॉडी में कंटिन्यूस चलती रहती हैं और ये थकते भी नहीं। या फिर इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। इकोलेलिया से मुराद ये है कि अगर आप उससे सवाल पूछेंगे तो वो आपका सवाल रिपीट कर देगा। पूछेंगे आपका नाम क्या है, वो कहेगा आपका नाम क्या है। आप इकोप्रेक्सिया से मुराद है कि लेट सपोज आपने एक मूवमेंट करी, मैंने अपने हाथ की एक मूवमेंट करी कि आपका नाम क्या है, तो वो भी ऐसे ही आपकी मूवमेंट्स को रिपीट कर रहा है। अगर आपकी मूवमेंट्स को कॉपी कर रहा है तो इकोपेरेक्सिया है। तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड मोटर बिहेवियर, it is characterized by the marked motor anomaly including the immobility, abnormal posturing, abnormal stereotype movements, echolalia and echoparexia. तो ये पॉजिटिव सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी वैल्यू क्या है हम आगे चल के देखते हैं, क्योंकि शिज़ोफ्रेनिया के डायग्नोसिस में ये 5 फीचर्स बहुत वैल्यू रखते हैं। नेगेटिव सिम्टम क्या है? इफेक्टिव फ्लेटिंग। देखिए यहाँ पे इफेक्टिव वर्ड से मुराद है मोड, फ्लैट, ब्लंटेड, लेबाइल एंड इनएप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स। इवोल्यूशन, लेक ऑफ मोटिवेशन को कहते हैं। एलोगिया, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, बात बहुत कम करेंगे। सोशल विथड्रॉल, दोस्तों में बैठना, महफिलों में जाना, किसी से बात करना, घर वालों के साथ बैठना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। बात करेंगे तो बहुत कम करेंगे, इनके अंदर जो मोटिवेशन है कोई काम करने की वो खत्म हो चुकी होगी। और इमोशनल रेस्पॉन्स बड़ा इनएप्रोप्रिएट होगा, अगर किसी का कोई नुकसान होगा तो हो सकता है ये उसके ऊपर रिएक्शन ही ना दे, अगर रिएक्शन देंगे तो बिल्कुल गलत रिएक्शन देंगे, हंसना शुरू कर देंगे। किसी का कोई फायदा है, कोई खुशी का मौका है, या तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे या तो रोना शुरू कर देंगे। तो ये सारे नेगेटिव सिम्टम्स हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स क्या हैं? अटेंशन इम्पेयर्ड, मेमोरी इम्पेयर्ड एंड इम्पेयर्ड एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज। अगर आप इनके अंदर अटेंशन, मेमोरी, ये सारी चीजें इम्पेयर्ड होंगी। अगर इनको आप कोई काम कहेंगे, यहाँ तक अगर कोई क्यूबिकल देते हैं कि भाई इसको ऑर्गेनाइज करना है, या 1 to 10 तक आपको ऑर्डर्स में क्यूब्स रखने हैं, तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी कॉग्निशन सारी इम्पेयर्ड होगी।
अदर सिम्टम में इनकी स्लीप डिस्टर्ब होंगी, डिप्रेस्ड और अनस्टेबल मूड। अनस्टेबल मूड से ज्यादा कभी डिप्रेस्ड होंगे, कभी बहुत ज्यादा खुश होंगे। सब्सटेंस अब्यूज करना शुरू कर देंगे, अल्कोहल, ओपियम, ये सारी एडिक्शन हो सकती है इनके अंदर। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं शिज़ोफ्रेनिया के। एक कोट था गैल ज़ुको का, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अक्यूट शिज़ोफ्रेनिया एंड अ वर्ल्ड एट वॉर। जब एक दुनिया के अंदर जंग लग रही होती है, लड़ाई होती है, वही हालात एक शिज़ोफ्रेनिक के दिमाग में होते हैं। शिज़ोफ्रेनिक का दिमाग जो वो अपने आप से लड़ाई कर रहा होता है, और वो लड़ाई इतनी शदीद होती है जैसे वर्ल्ड वॉर। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें। चैट बॉक्स आपके पास है, आप टाइप कर लें क्वेश्चन ताकि हम आगे मूव कर सकें इसमें। जी, एनी क्वेश्चन? Okay, no. Let's move. What are the different types of the schizophrenia? There are around 5 types of schizophrenia. One is paranoid, other is catatonic, third is disorganized, fourth undifferentiated, and fifth is the residual. Paranoid schizophrenia, these types are divided on the basis of the clinical feature. तो क्लिनिकल फीचर्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो टाइप्स क्लियर हो जाएंगे। पैरानोइड शिज़ोफ्रेनिया उसको कहेंगे जिसमें हेल्यूसिनेशंस होंगी, डिल्यूजन्स होंगी, बट नो कैटाटोनिक सिम्टम्स। हेल्यूसिनेशन भी हैं, डिल्यूजन भी हैं, पर कैटाटोनिक सिम्टम्स नहीं है। ऐसे मरीजों की जो फंक्शनल एबिलिटी है, ऐसे मरीजों की जो पर्सनैलिटी है, वो सही रहती है, वो इंटैक्ट रहती है, उसमें वो अपने नॉर्मल रूटीन में चल रहे होते हैं। और ऐसे पैरानोइड शिज़ोफ्रेनिक आपके साथ काम भी कर रहे होते हैं, प्रोफेशनली, पर्सनली, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो इफेक्ट किससे होते हैं? हेल्यूसिनेशन से और डिल्यूजन से। कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया नाम से जाहिर है जिसमें प्रोमिनेंट साइकोमोटर सिम्टम्स हो। साइकोमोटर सिम्टम्स की मैंने अभी बात की, जैसे रिजिडिटी या इमोबिलिटी, फॉर एबनॉर्मल पोस्चरिंग, एबनॉर्मल पोस्चरिंग फॉर और, अगर आप उसे कहेंगे आपको यहाँ खड़ा रहना है और सामने देखते रहना है, वो घंटों तक वैसे ही खड़े रहेंगे और वैसे ही देखते रहेंगे, आईज को ब्लिंक भी नहीं करेंगे। उसके अलावा क्या हो सकता है? स्टूप्रस हो जाना। स्टूप्रस हो जाने का मतलब है कोमा से जो पहले स्टेज है उसमें आ जाते हैं। और क्या हो सकता है कि इनके अंदर हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, और कभी कभी हाइपर एक्साइटेबिलिटी के साथ साथ फिर ये मोबाइल हो जाएगा। इकोलेलिया जो मैंने डिस्क्राइब किया था, दे विल रिपीट द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन, और इकोपेरेक्सिया, दे विल रिपीट द इंटरव्यूअर्स मूवमेंट्स। जैसे अगर आप अक्सर, मैंने एक इंटरव्यू लिया था एक शिज़ोफ्रेनिक का, मेरा एग्जाम था, साइकेट्री से मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था उस रोटेशन का, तो शिज़ोफ्रेनिक मेरे सामने बैठा था। तो जब मैंने उनसे कहा कि आपको स्टार बनाना है, हम लोगों ने उसकी पैराइटल लोब के फंक्शन चेक करने थे, तो मुझे कहना लगा हाँ मुझे स्टार बनाना है। मतलब आपको स्टार बनाना? हाँ आपको स्टार बनाना है। दोबारा बोला, मैंने कहा आप ये पॉइंट्स को आपको मैच करके एक स्टार कागज पे बनाना है। उसने बोला हाँ ये पॉइंट्स को मैच करके आपको स्टार कागज पे बनाना है। तो इसका मतलब क्या था? उसमें इकोलेलिया था और इकोपेरेक्सिया था। और अक्सर मैंने उसको देखा
कि अगर वो एबनॉर्मल पोस्चर, यानी कि अगर बाल्टी लेके उनको जब काम पे लगाते हैं कि भाई ये कुछ लोग इनके अंदर जो है वो मेंटल ग्रोथ बेहतर हो, तो बाल्टी लेके अगर बाहर जा रहा है तो वो बाल्टी लेके घंटों तक एक जगह खड़ा रहता था, आपके बात करने पे समझाने पे वो नहीं हिलता था वहां, उसका इतना सीवियर कैटाटोनिक बिहेवियर था। कभी कभी बाहर दरख्त के नीचे जैसे खड़ा हो जाता था, कहता था अब मैं दरख्त बन गया हूँ, और वो दरख्त बन के वहां पर घंटों तक खड़ा होता था जब तक उस वार्ड बॉय आकर उसको वापस ले जाके अंदर ना बिठा दे। तो ये सारे कैटाटोनिक फीचर्स थे उसके। अब डिसऑर्गेनाइज्ड शिजोफ्रेनिया क्या है? Disorganized schizophrenia, it is a grossly disorganized behavior, it's a flat or grossly inappropriate affect, confusion होगी, childlike movements होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ड्रेस्ड इनअप्रोप्रिएटली, कपड़े जो है वो सही नहीं पहनेगा। ऐसा नहीं हुआ कि कमीज एक है शलवार का कलर दूसरा है, कभी कभी शलवार का एक पांचा ऊपर है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था सलमान खान का क्योंकि फिल्म में, तो एक पांचा ऊपर है, एक उसने पूरा पहना हुआ है। और कभी कभी ये क्या कहते हैं, शलवार अपने सर के ऊपर भी पहन लेते हैं क्योंकि उनकी ड्रेसिंग का आइडिया नहीं है, ड्रेसिंग की कलर मैचिंग का आइडिया नहीं है, हरूबरू वो गलियों में घूम रहे हैं, खुद से बातें भी कर रहे होते हैं, तो ये हो जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड शिज़ोफ्रेनिया। यहाँ पर हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन नहीं होंगे। अनडिफरेंशिएटेड शिज़ोफ्रेनिया, जब शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को अपना पैरानॉइड में रख सकें, ना हम कैटाटोनिक कर सकें, ना हम डिसऑर्गेनाइज्ड में रख सकें, तो उसे हम अनडिफरेंशिएटेड शिज़ोफ्रेनिया में रख देते हैं। हालांकि इनमें प्रोमिनेंट हेलुसिनेशंस होंगी, डिल्यूजन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, तीनों एक साथ हैं, तो अब आप इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये पैरानॉइड है, कैटाटोनिक है या डिसऑर्गेनाइज है। क्यों? क्योंकि उन तीनों के फीचर यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये हो जाएगा अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। अब जाता है रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया में आपको मिलेंगे नेगेटिव सिम्टम इन द एब्सेंस ऑफ द पॉजिटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम्स हमने कौन से पढ़े थे? इफेक्टिव फ्लैटनिंग, एवियोलेशन, ठीक है, तो सोशल विथड्रॉल, तो वो जब सारे सिम्टम्स इसमें आ जाएंगे तो इसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो है एलोगिया, तो ये सारे रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिया में आएंगे। द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स ओनली is categorized as residual schizophrenia. Diagnosis of schizophrenia. For the diagnosis of schizophrenia, 2 or more of the following symptoms should be present, but for at least 6 months. नीचे दिए गए सिम्टम में से 2 हों या 2 से ज्यादा हों, लेकिन कम से कम 6 महीने के लिए, जैसे हेल्यूसिनेशंस हैं, डिल्यूजन्स हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, disorganized gross behavior or motor behavior are negative symptom. Investigation में हम इनकी brain imaging करवाते हैं which can show or will show atrophic brain, especially around the temporal lobe, dilation of the lateral ventricle, reduction in the cortical volume, especially around the basal ganglia, thick corpus callosum, and the PET scan will show hypoactive frontal lobe and hyperactive basal ganglia. Now the treatment of schizophrenia. So कैसे treat करें? We have 3 basic modalities to treat the schizophrenia: the medical treatment, psychological treatment, then social treatment. We start with the first, that is the medical treatment. Then the medical treatment includes drugs, okay, and the drugs are antipsychotic drugs. So a little division of pharmacology. The antipsychotic drugs are divided into 2 classes. The one is traditional
are typical antipsychotics, another is atypical antipsychotics. The traditional or typical antipsychotics includes chlorpromazine, perchlorperazine, haloperidol, and fluphenazine. Atypical antipsychotics include risperidone, olanzapine, quetiapine. So why we need both classes? What is the difference between the typical and atypical antipsychotics? Anyone? Uh, do you have a long-term memory? If you have a long-term memory, then go and tell us about the difference between the typical and atypical antipsychotic. A flashback to the pharmacology third year, because medicine is the combination of physiology plus pharmacology. So anyone? Difference between the typical and atypical antipsychotics? No one. That's good. So we have 64 participants, and from 64, no one is remembering the old pharmacology lectures for typical and atypical antipsychotics. Strange. Okay. The typical antipsychotics. Okay, there's a one response. Let's see. Very good. Typical, the act on the dopaminergic receptors. Fatma Kolachi, good. Hira Fazal, okay. Typical act on the dopamine receptors. और ये बहुत जल्दी आप गूगल कर रही हैं और गूगल में देख रही हैं कि टिपिकल और एटिपिकल के डिफरेंस क्या है. चलें मैं बता देता हूँ, गूगल करने की जरूरत नहीं है अब ज्यादा. टिपिकल जो होते हैं, दे विल एक्ट ऑन दी डोपामीन रिसेप्टर. वेरी नाइस. बट अटिपिकल, then they not only act on the dopamine receptor, but they also act on the serotonin, histamine and muscarinic receptor. हमने अभी पहले क्या पढ़ा था, इटियोलॉजी ऑफ शिज़ोफ्रेनिया में जो हमने जेनेटिक फैक्टर्स पढ़े थे, वहां हमने क्या कहा था, डोपामीन इंक्रीज होता है, सीरोटोनिन भी इंक्रीज होता है. तो हमें ज्यादा जरूरत किसकी पड़ी, अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की. ट्रेडिशनल में छोड़ने पड़े क्योंकि ट्रेडिशनल सिर्फ डोपामीन इफेक्ट कर रहे थे. अटिपिकल जो है वो डोपामीन, सीरोटोनिन, हिस्टामीन और मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहे हैं. क्लिनिकल यूज इनका हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया में है अभी, और इनके एडवर्स इफेक्ट्स जो मेजर हैं, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, दे कॉज एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्पटम. एटिपिकल भी करवाते हैं, लेकिन एटिपिकल के साथ एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्पटम के चांसेस बहुत कम होते हैं. टिपिकल के साथ एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्पटम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. अब एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्पटम्स हैं कौन से? acute dystonia, akinesia, akathisia and tardive dyskinesia. acute dystonia से क्या मुराद है कि there is muscle spasm, muscle stiffness and oculogyric crisis. Akinesia, that means Parkinson's like symptom. It is akinesia. Akathisia means restlessness. Tardive dyskinesia, these are the orofacial movement. ओरोफेशियल हरू पे अपने मुंह बना रहे हैं, और ये बनाते हैं शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट. हमें लगता है ये शिज़ोफ्रेनिया का फीचर है. नहीं, ये जो ट्रेडिशनल ड्रग्स आपने टिपिकल या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आप दे रहे हैं, ये उनका साइड इफेक्ट है. और ये जो टार्डिव डिस्काइनेसियास हैं, ये परमानेंट हो जाते हैं. पेशेंट कभी कभी स्किज़ोफ्रेनिया से निकल आता है, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स परमानेंट हो जाते हैं. वो ओरोफेशियल मूवमेंट्स करते रहते हैं. जैसे मुंह को कभी ऐसे पाउटिंग ऑफ लिप्स करेंगे, कभी हरू को आंखें बंद करके खोलेंगे, कभी नाक को सुकोड़ रहे होंगे, तो हमें लगेगा ये सारी चीजें क्या साइड इफेक्ट है. ये शिज़ोफ्रेनिया के फीचर्स नहीं है, और ये यूजुअली परमानेंट हो जाते हैं. जब हमें एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम से बचना है,
तो हम एटिपिकल को चॉइस करते हैं। अटिपिकल भी करवाती हैं लेकिन उसमें चांसेस कम है। सेकेंड साइड इफेक्ट जो इनका मेन है वो है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। एनएमएस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इमरजेंसीज में, स्पेशली साइकेट्रिक इमरजेंसीज में। ये पेशेंट आते हैं यूजुअली फीवर के साथ, एनकेफेलोपैथी के साथ, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, रिजिडिटी और एलिवेटेड क्रेटिनिन काइनेज एंड मायोग्लोबिन यूरिया के साथ। इसके फीचर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखें न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम is a side effect of antipsychotic. It is more common with typical antipsychotics. Extrapyramidal symptoms are more common with typical antipsychotics. Clear? Next modality is psychological treatment. Psychological treatment needs a good doctor-patient relationship. Patient needs the support, patient needs reassurance and cognitive behavior therapy, CBT. Cognitive behavior therapy is a psychological treatment for schizophrenia. And the psychotherapy, which is more interventional, more exploratory psychotherapy, is contraindicated in patients with schizophrenia. So the only treatment is CBT or cognitive behavior therapy. Social treatment, we counsel the family to provide an optimal emotional or optimal social stimuli. हम उसकी फैमिली को काउंसल करते हैं कि ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम इमोशनल एक्सपोजर है इनका, सोशल एक्सपोजर एक ऑप्टिमल लेवल तक रखें। ये हो गई पर्सनल की काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग। प्रोफेशनली इनको एडवाइज करते हैं कि ये शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट, शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि अब ये अलाउ नहीं करते कि ये मरीज रिकवर हो गया है या ये मरीज जिसके सिम्टम्स कंट्रोल हैं आप इसको बिठा दें कि भाई आप तो पानी का जहाज भी चला सकते हैं, या आप इसको कहते हैं किसी फैक्ट्री में जहां बहुत हेवी मशीनरी है वहां काम कर सकते हैं, या ऐसी फैक्ट्री जहाँ बॉयलर लगे हुए हैं, जहाँ फायर का काम है वहां कर सकते हैं, आप वेल्डिंग कर सकते हैं। लोग इनको शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट देनी है, यानी कि जैसे कुर्सियां बनाना या फिर जैसे कोई कार्ड्स वगैरह का काम है जो ये इजीली कर सकें, जहां पर डेंजर बहुत कम हो, वरना ये खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। थर्ड क्या होगा, फॉलोअप करना पड़ेगा ऐसे मरीजों का। फॉलोअप उन मरीजों का होता है जिनकी ट्रीटमेंट से एडियरेंस पुअर हो। हम तो उनको ट्रीट कर चुके हैं, घर भेज चुके हैं, हम कहते हैं सिम्टम कंट्रोल है, फिर वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए मेंटल हेल्थ टीम्स होती हैं जो उनको फ्रीक्वेंट विजिट करती हैं उनके वर्क प्लेसेस पे या उनके होम्स पे। तो ये तीन चीजें मैं इंश्योर करवानी है, फैमिली काउंसलिंग, sheltered employment and a follow-up with a mental health team. So these three modalities combinedly will treat a patient with schizophrenia, hopefully with a good prognosis. Now, any question from your side regarding schizophrenia? जी हाँ जी, ये जवाब मिल गया, एटिपिकल सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है जी, तो स्किज़ोफ्रेनिया को हम यहाँ ओवर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं आप। ये सारी स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स हैं। बार बार फीमेल की तस्वीर दिखाने से ये बिल्कुल मुराद नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया फीमेल में कॉमन है। इसका जेंडर जो रेशियो वो इक्वल है। आपसे हम सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डिफाइन कर लें स्किज़ोफ्रेनिया को, इटियोलॉजी आपको पता हो, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स आपको पता हो, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप बता देंगे। भाई ये टिपिकल और अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कौन सी हैं, दो दो नाम, उनका बेसिक डिफरेंस क्या है, कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।
Any question again? No? Then thank you. And tomorrow we will discuss the next lecture on probably an anxiety disorders and obsessive compulsive disorder on the same time, inshallah.